Hello friends, welcome once again to my channel Smita Classes. As you know, we were dealing with the science book of standard 6 and the name of the book was New Approach to Science, and we were doing the 13th chapter. Its name was Fun with Magnets. We have already done part 1 of the chapter, we have completed, and now we will do the part of 2 of that chapter, Fun with Magnets. We will start reading. Make your own magnet, single touch method. A piece of iron or steel can be magnetized by stroking it several times with a magnet as described below. Take a screwdriver and place it on the table. Now take a bar magnet and place one of its poles near one edge of the screwdriver. Without lifting the bar magnet, move it along the length of screwdriver till you reach the other end. Now lift the magnet and bring the same pole to the same point of the screwdriver from where you began. Move the magnet again along the iron bar screwdriver in the same direction as you did before. Repeat this process about 30 to 40 times. आप अपना मैग्नेट खुद बना सकते हैं, है ना. बना तो सकते हैं मैग्नेट, ऑल्दो वो थोड़ा टेम्प्रेरी मैग्नेट होगा, कुछ समय के लिए वो मैग्नेटिज्म शो करेगा. आप मान लीजिए कोई आयरन आर्टिकल आपने लिया, एक जैसे कि स्क्रू ड्राइवर आपने एक लिया है, ठीक है. अब जो है आप एक उसके पास एक बार मैग्नेट लाए. स्क्रू ड्राइवर का नीचे का एरिया तो है वो, या टेस्टर जो भी आप लेंगे उसका प्लास्टिक का है, सामने का एरिया उसका आयरन का है जहाँ पे उसका रॉड निकला रहता है. तो वहाँ पे आप बार मैग्नेट के एक पोल को, वो जो है स्क्रू ड्राइवर का जो वो आयरन नेल जो उसका लंबा सा आयरन का निकला रहता है स्टिक, उस स्टिक में बार मैग्नेट के एक साइड के पोल को टच करते हुए उसके ऊपर घिसते हुए लाएंगे, फिर उठाएंगे, फिर दोबारा उसी जगह से स्टार्ट करके फिर घिसते हुए लाएंगे. इस तरह बार बार उसके ऊपर आप बार मैग्नेट के एक पोल को पूरा घिसेंगे पूरे स्क्रू ड्राइवर के ऊपर एक ही डायरेक्शन में. ऐसा आप 30-40 टाइम्स करेंगे तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आप आयरन का कोई और चीज़ लेके आए तो वो स्क्रू ड्राइवर में टच होने से ही वो स्क्रू ड्राइवर में अटैच हो जा रहा है, चिपक जा रहा है. ये कुछ समय के लिए रहेगा, थोड़ी देर के लिए स्क्रू ड्राइवर का मैग्नेटिज्म रहेगा. तो इस तरह आप अपना खुद का मैग्नेट बना सकते हैं बाई स्ट्रोकिंग एनी आयरन आर्टिकल और मैग्नेटिक सब्सटेंस विथ ए मैग्नेट सेवरल टाइम्स, है ना. कोई भी एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, उसके ऊपर बार बार मैग्नेट को स्ट्रोक करेंगे, घिसेंगे, तो आप अपना भी मैग्नेटिक बना सकते हैं. Magnetic compass. A magnetic compass is a standard device used for finding the directions. It is very useful for sailors and navigators to locate the direction in which their ships or aeroplanes are moving. Magnetic compass is a flat circular box with directions marked on it. It shows directions such as north, south, east, west, northeast, northwest, southeast and southwest. From its center rises a sharp magnetic needle. This needle is fixed in such a way that it is completely free to move in any direction. If left on its own, it always points in the north-south direction. By knowing the position of the sun, one can conclude if the direction is north or south. Make your own compass. Magnetize an iron needle using a bar magnet as described previously. Take a small piece of cork or foam and insert the magnetized needle through it. Take a cup filled with water and let the cork flow in it. Make sure that the needle does not touch the water. Now your compass is ready to work. Note the direction in which the needle points when the cork is floating. Rotate the cork in different directions. Note the direction in which the needle points where the cork begins to float again without rotating. We see that the needle always points in the same direction when the cork floats without rotation. अब है एक होता है मैग्नेटिक कॉम्पास. मैग्नेटिक कॉम्पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि डायरेक्शन बताता है ना, और वो डायरेक्शन बताता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, उसका कॉम्पास का नीडल पॉइंट करता है, जिससे कि जो है जो सेलर लोग जो जाते थे शिप में दूर दूर की यात्रा पे जाते थे तो वो डायरेक्शन जानने के लिए वही मैग्नेटिक कॉम्पास को यूज़ करते थे. तो जब वो मैग्नेटिक कॉम्पास जो है वो जिस डायरेक्शन में पॉइंट करता था तो वो डायरेक्शन नॉर्थ होता था. मैग्नेटिक कॉम्पास का नीडल जिस डायरेक्शन में पॉइंट करता था तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होता था. फिर ये लोग देखते थे कि सन अभी राइज़ किया है कि सेट होने वाला है, उस हिसाब से ये लोग बाकी डायरेक्शंस का भी अंदाज़ा लगा लेते थे. ठीक है, तो ये एक तरह का स्टैंडर्ड डिवाइस है, पूरा अच्छा डिवाइस है जिसको पूरी दुनिया में माना जाता है डायरेक्शंस जानने के लिए. ठीक है, जब जो सेलर्स और नेविगेटर्स जो हैं, यानी जो समुद्र में नाविक लोग जो जाते थे, हाँ, शिप में बैठ के जाते थे ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए इधर उधर, या नेविगेटर्स, बहुत लोग ऐसे भी थे जो जाते थे नए नई जगहों की खोज करने के लिए, रास्ते जानने के लिए.
तो वो लोग डायरेक्शन जानने के लिए यही मैग्नेटिक कॉम्पास का मदद लेते थे, ठीक है, और उससे वो जान पाते हैं। इसी तरह जो एरोप्लेन में भी जा रहा है वो लोग भी मैग्नेटिक कॉम्पास का मदद लेते हैं, तो वो लोग डायरेक्शन जान पाते हैं। मैग्नेटिक कॉम्पास क्या है? एक सर्कुलर बॉक्स है, जैसे घड़ी का डायल हमारा सर्कुलर होता है, ऐसे मैग्नेटिक कॉम्पास एक सर्कुलर बॉक्स है जो कि फ्लैट है, ठीक है, ऊपर से पूरा फ्लैट है, ऐसा बहुत उठा हुआ नहीं है, ऊपर से फ्लैट है और एक सर्कुलर बॉक्स है, ठीक है। उसमें डायरेक्शन मार्क भी किया हुआ है, ठीक है, उसमें डायरेक्शन मार्क किया है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, सब डायरेक्शन उसमें मार्क किया हुआ है, ठीक है। अब जो है उसके बीच के सेंटर से एक नीडल है, एक सुई है, जैसे कि क्लॉक में सुई होता है उसी तरह उसमें भी सुई है जो कि ऊपर थोड़ा सा उठा हुआ है, उसके नीडल सेंटर से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, ठीक है, बाहर की तरफ प्रोट्रूड आउट कर रहा है, ठीक है। तो वो नीडल इस तरह से फिक्स किया गया है कि वो पूरे गोल पूरे डायरेक्शन में घूम सकता है, ठीक है। इट कैन मूव, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, वो किसी भी डायरेक्शन में वो नीडल जो है कंपास का जो सुई निकला हुआ है ऊपर की तरफ कहीं से भी डायरेक्शन में मूव कर देता है, ठीक है। अगर हम लोग उसको ऐसे ही छोड़ देंगे कि हम लोग उसके नीडल को नहीं घुमाएंगे तो वो हमेशा जिस डायरेक्शन में उसका नीडल पॉइंट करेगा, जिस डायरेक्शन में रहेगा वो क्या होगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। अब नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन तो वो बता दिया। उसके बाद ये जो सेलर लोग हैं वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग सन को देखते हैं, अभी सन उगा है या ओवरहेड है कि अभी डूबने वाला है, वो देख के वो लोग बाकी डायरेक्शंस का भी अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो इसमें एक स्टोरी भी है ना कि मैग्नेटिक कॉम्पास लेके सेलर लोग जब जाते थे, पुरी के पास से जा रहे होते थे तो कोणार्क मंदिर के पास से क्रॉस कर रहे होते थे, तो कोणार्क मंदिर में एक बहुत बड़ा सा मैग्नेट था, वो सेलर लोग के कॉम्पास को हमेशा अपने की तरफ खींच लेता था, है ना। तो उनका डायरेक्शन गड़बड़ हो जाता था, वो डायरेक्शन ठीक से जान नहीं पाते थे, इसलिए लास्टली फिर वो बहुत ही बड़ा सा मैग्नेट था उस मंदिर के ऊपर, उन लोगों ने वो जो फॉरेन के जो सेलर सब थे उन्होंने वो मैग्नेट ही उखाड़ कर वो ले गए, ठीक है। तो ये एक स्टोरी है उसके ऊपर। अब है कि आप अपना कॉम्पास बना सकते हैं, ठीक है। आप एक आयरन नीडल लीजिए और उसको जो है एक मैग्नेट पे बार बार, मैग्नेट को एक आयरन नीडल के ऊपर बार बार घिस के, ताकि आयरन नीडल में भी थोड़ा मैग्नेटिज्म आ जाए, ठीक है। अब एक बाउल आप लीजिए और जो है बाउल में आप थोड़ा पानी भर दीजिए और एक कॉर्क लीजिए। कॉर्क आप जानते हैं ना, वो प्लांट से बना हुआ रहता है, प्लांट का जो पाउडरी सब्सटेंस होता है उससे कॉर्क बना रहता है, प्लांट का मतलब कह सकते एक तरीके से लकड़ी का बुरादा जो होता है उससे कॉर्क बना रहता है, जो कि जैसे कि आजकल तो प्लास्टिक कॉर्क्स, रैकेट का जो बैडमिंटन खेलने जाते हैं बच्चे तो उसका शटल क्या यूज़ करते हैं, उसका शटल प्लास्टिक वाला आजकल यूज़ करते हैं। तो पहले क्या होता था, आगे फेदर्स लगे रहते थे वाइट कलर का उसका शटल में और पीछे एक ब्राउनिश कलर का सब्सटेंस रखा रहता था जो कि कॉर्क होता था। हाँ, पेड़ों से निकाले गए लकड़ी के बुरादे से बना हुआ कॉर्क रहता था, जो कि जब बच्चे बैडमिंटन खेलने जाते हैं तो उनके पास एक कॉर्क होता है ना, इसको शटल बोलते हैं हम लोग। तो वो क्या होता था, पहले फेदर वाला होता था, उसके पीछे एक ब्राउन कलर का गोल लगा रहता था, वो ही ब्राउन कलर जो है उसको कॉर्क कहते हैं। वो एक प्लांट प्रोडक्ट है, पेड़ के जो लकड़ियां जब काटते हैं तो उसका जो बुरादा निकलता है ना, उसका जो मतलब पाउडर सब्सटेंस निकलता है लकड़ी का, उसी से वो कॉर्क को बनाया जाता है, ठीक है। तो वो कॉर्क होता है, वो बहुत ही लाइट वेट का होता है। तो ये यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक बाउल लिया जा रहा है, पानी लिया जा रहा है, एक कॉर्क में एक नीडल को फंसा दिया जा रहा है, क्योंकि कॉर्क में बहुत छोटे छोटे होल होते हैं तो उसमें आसानी से घुस जाएगा। तो वो मैग्नेटाइज्ड नीडल को उस कॉर्क के भीतर डाल दिया गया है, ठीक है। अब जो है इस तरीके से डाला हुआ है कि जो है नीडल पानी को नहीं टच कर रहा है। अब हम लोग उस कॉर्क को रोटेट कर देंगे, घुमा दे रहे हैं पानी में इधर उधर। थोड़ी देर घूमने के बाद वो जब स्टेबल हो जा रहा है तो वो हम आप देखेंगे हर बार वो सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, यानी अब वह एक मैग्नेटिक कंपास की जैसा काम कर रहा है और वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को ही पॉइंट करेगा। जब वो रोटेट नहीं कर रहा है, स्टेबल है, पानी के भीतर स्थिर है, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को ही पॉइंट कर रहा है। एप्लीकेशन ऑफ अ मैग्नेट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूजेस of a magnet is as compass needle. The compass needle points in the north-south direction because the Earth is also a giant magnet. The compass lines up with the Earth's magnetic field. Knowing that the north pole of the compass needle always points to the Earth's north pole, we can help us to go in any direction we wish.
It is used in factories for lifting heavy masses of iron like scrap iron. It is used by surgeons in hospital to remove steel splinters from the wounds. It is used in the construction of telephone, electric bells, headphones, speakers, etc. It is used to separate iron and steel from non-magnetic material like brass, aluminum, etc. Credit cards, ATM cards, identity cards have a strip of magnetic material that stores information. Protection of magnet. Magnets lose their magnetic properties if they are hammered, heated to red hot, or dropped from some height. Magnets should be stored properly. They tend to become weaker after some time if poles are left free. This is called self-demagnetization. Bar magnets should be kept in pairs with opposite poles on the same sides. They must be separated by a piece of wood, and the two pieces of soft iron should be placed across their ends. A piece of iron should be kept across the poles of horseshoe magnet. Magnets should be kept away from mobile, television, music system, cassettes, compact discs, and computer. The trains that do not have wheels are called maglev, magnetic levitation. अब है कि एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेट, मतलब मैग्नेट का क्या क्या यूजेस है। तो एक सबसे पुराना यूज उसका क्या है कि उसको मैग्नेटिक कॉम्पास में मैग्नेट को यूज किया जाता था ताकि डायरेक्शन का पता कर सके, ठीक है, क्योंकि वो कॉम्पास जो है वो हमेशा जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करके दिखाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं अर्थ के भीतर भी एक बहुत बड़ा सा मैग्नेट है जो कि एक्चुअली अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ के उल्टे डायरेक्शन में वो है, अर्थ के भीतर जो एक बड़ा सा मैग्नेट है। तो ये जो कंपास जो है, कंपास में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो जो है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के साथ अपने आप को सेट कर लेता है। इसीलिए जो है हम लोग देखेंगे कि जो है कंपास का जो नीडल है जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता है, जब कंपास में वो अर्थ के भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को दिखाता है, क्योंकि वो अर्थ के अंदर का जो बड़ा मैग्नेट है उसके साथ कोऑर्डिनेट कर जाता है, उसके मैग्नेटिक फील्ड में आ जाता है, ठीक है। अब फैक्ट्रीज में जो है मैग्नेट को यूज किया जाता है, जैसे कि स्क्रैप आयरन है, मतलब कि घरों से लोग कबाड़ी वाले को आयरन बेचते हैं, वो आयरन जाके वो एक जगह डंप करता है जहाँ पे वो रिसाइकल के लिए रखता है। अब वहाँ पे प्लास्टिक के भी सामान है और भी सामान है, उसमें से सिर्फ आयरन को निकालना है और बहुत बड़ा बड़ा पीस भी होगा आयरन का जिसको कि स्क्रैप आयरन कहा जा रहा है, टूटा फूटा आयरन। उसको वहां निकालने के लिए क्या किया जाता है, बड़े बड़े क्रेन लेके जाए जाते हैं, वो क्रेन में मैग्नेट लगा रहता है, वो क्रेन का हैंडल नीचे नीचे होगा और मैग्नेट जो है वह सारे आर्टिकल को अपने में चिपका लेगा, फिर उस क्रेन के हैंडल को ऊपर कर लिया जाता है और दूसरी जगह ले जाया जाता है। यानी कि फैक्ट्रीज में जहाँ पे कि आयरन का बहुत भंडार पड़ा होगा, टूटा फूटा आयरन का, दूसरे कबाड़ के साथ, उसमें से आयरन निकालने के लिए इसको जो है मैग्नेटिक क्रेन के आगे मैग्नेट लगाया जाता है, ठीक है। इसी तरह हॉस्पिटल में मान लीजिए कोई आदमी गया है, तो उसको जो है जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी है जो कबाड़ी वगैरह का काम कर रहा है, तो वो कोई मशीन पार्ट को खोल रहा है, तो उसी चक्कर में जो है बहुत सारा कुछ मशीन पार्ट में कुछ एक्सप्लोजन होता है कि कुछ टूट फूट जाता है, तो स्टील का छोटा छोटा स्प्लिंटर जो होता है, छर्रा जो बोलते हैं, वो उसके स्किन में कहीं कहीं घुस के वहां पे वुंड कर देता है, घाव कर देता है। अब उसको निकालने में बहुत मुश्किल है क्योंकि स्किन के थोड़ा अंदर अंदर चला गया है। तो डॉक्टर जो है, सर्जन लोग क्या करते हैं, वो लोग जो है मैग्नेट की मदद से मैग्नेट को उस घाव के पास ले जाते हैं और वहां से स्टील के छर्रों को निकाल के बाहर करते हैं, ठीक है। या कहीं कोई एक्सप्लोजन हुआ बॉम्ब वगैरह का, तो वहां पे भी स्टील के छर्रे बॉडी में घुस जाते हैं, तो उनको भी निकालने के लिए मैग्नेटिक मटेरियल का यूज हॉस्पिटल्स में किया जाता है। इसी तरह जो है जब भी टेलीफोन बनता है हम लोग का, चाहे मोबाइल फोन हो, लैंड फोन हो, जो भी है, इलेक्ट्रिक बेल होता है जो कि हम लोग के घर में अलार्म कॉलिंग बेल होता है ना, वो होता है, या फिर जो हेडफोन हम लोग यूज करते हैं लगा के म्यूजिक वगैरह सुनते हैं, या जो स्पीकर्स हमारे घर में है कंप्यूटर से कनेक्टेड, सारे में मैग्नेट को यूज किया जाता है, ठीक है। अब बहुत सारा आर्टिकल रखा है, ब्रास का भी है, एल्युमिनियम का भी है, आयरन का भी है, उसमें सिर्फ आपको आयरन का आर्टिकल चाहिए और बाकी को अलग करना है। आपको आयरन और ब्रास एल्युमिनियम को सबको अलग करना है, तो उस समय भी आप मैग्नेट की मदद लेते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल को अपने साथ ले जाएगा और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को वहीं पे छोड़ देगा, ठीक है। अब जो है जितना भी हम लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, एटीएम कार्ड यूज करते हैं, या हम लोग का जो भी आइडेंटिटी कार्ड होता है, सब में जो है मैग्नेटिक मटेरियल का एक स्ट्रिप लगा हुआ रहता है
इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहता है। एटीएम कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहता है क्योंकि उसमें एक मैग्नेटिक मटेरियल का एक पत्ती जैसा लगा रहता है, स्ट्रिप लगा रहता है। अब है प्रोटेक्शन ऑफ मैग्नेट। आप मैग्नेट को कैसे बचा सकते हैं? मैग्नेट को अगर बहुत जोर से हथौड़ी से पीटा जाएगा, हैमर किया जाएगा, या आप उसको बहुत तेज आग में बहुत देर तक उसको आग में जलाएंगे जो कि वो पूरा जल जल के हीट होके फिर रेड हॉट दिखने लगेगा, ऐसे जब मैग्नेट को किया जाएगा तो मैग्नेट अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देता है। ठीक है, मैग्नेट को बहुत ही ध्यान से रखना भी पड़ता है, नहीं तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो जाएगा और कुछ समय के बाद जो है वो पूरा वीक हो जाएगा। क्योंकि आप मैग्नेट को ऐसे ही रख देंगे कहीं पे भी मान लीजिए और उसके आसपास आप आयरन पार्टिकल इधर रख दिए, कुछ इधर रख दिए, तो मैग्नेट हर समय रोटेट होता रहेगा, कभी उधर के आयरन पार्टिकल में अट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसे करके वो रोटेट होता रहेगा, आसपास आयरन पार्टिकल रहेगा। ऐसे में धीरे धीरे वो वीक हो जाएगा और खुद ही सेल्फ डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा बार मैग्नेट है जो कि लेबोरेटरी में भी रखा रहता है, फिजिक्स लेबोरेटरी में छोटा सा रेड और ब्लैक कलर का पेंटेड रहता है, बार मैग्नेट होता है। तो जो है बार मैग्नेट को जो है इस तरीके से रखना चाहिए कि दूसरे बार मैग्नेट का, अगर इस बार मैग्नेट का नॉर्थ है तो दूसरा एक बार मैग्नेट उसके पास रखे जिसको साउथ पोल को उसके नॉर्थ के पास रखे, यानी अपोजिट पेयर को पास पास करके रखना चाहिए ताकि वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होके रहेगा। एक बार मैग्नेट दूसरे बार मैग्नेट से अट्रैक्ट होके रहेगा, अपोजिट पोल्स को पास पास रखेंगे। अब मान लीजिए आपके पास एक पेयर हो गया है बार मैग्नेट का, ठीक है, एक का नॉर्थ दूसरे के साउथ को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, एक पेयर है। अब और एक पेयर है उसके पास, अब दूसरे पेयर को पहले वाले से दूर करने के लिए क्या करेंगे, बीच बीच में लकड़ी लगा के रखेंगे, पीस ऑफ वुड, छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े लगा के रखेंगे। ठीक है, और जो है उनको एक दूसरे से दूर कर करके रखेंगे। ठीक है, और जो है उनका जो एंड है, एक एक एंड तो एक दूसरे से अटैच हो गया, दूसरा एंड जो खाली रह जाता है बार मैग्नेट का, एक का साउथ है दूसरे का नॉर्थ है, वो दोनों अटैच होके हैं पर उनका दूसरे अपना अपना नॉर्थ साउथ भी तो बचा हुआ है ना, तो उस जगह पे क्या करते हैं, छोटा छोटा पीस ऑफ आयरन रखना चाहिए, सॉफ्ट आयरन जो कि उसमें से चिपक के रहेगा, तो इस तरह मैग्नेट का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बचा रहेगा। ठीक है, इसी तरह जो है हॉर्स मैग्नेट जब हम लोग रखेंगे, जो मतलब कि यू शेप का मैग्नेट होता है, दोनों एंड में सॉफ्ट आयरन को लगा के रखना चाहिए। ठीक है, अब है जितना भी हम लोग पास टेलीविजन है, मोबाइल फोन है, या फिर सीडीज है, कंप्यूटर है, या कैसेट्स पहले के जमाने का होता था जिसमें गाना सुनते थे, कैसेट्स में गाना रिकॉर्डेड होता था, तो उन सब से मैग्नेट को दूर रखना चाहिए। ठीक है, इन सभी चीजों से, नहीं तो मैग्नेट अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देगा। अब कुछ कुछ ऐसे ट्रेन है जिनमें व्हील्स नहीं है, उनके चक्के नहीं है, ठीक है, वो ट्रैक से थोड़ा ऊपर उड़ के उड़ते हैं, जापान वगैरह में है, तो ऐसे ट्रेन्स को कहते हैं मैगलेव ट्रेन्स कहते हैं, और वो मैग्नेट की ही प्रॉपर्टी को वहां पे यूज करता है, मैगलेव ट्रेन्स कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है आप जान पाए कि मैग्नेट में कितनी सारी चीजें होती हैं, मैग्नेट का कितना सारा यूजेस है। बस अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आपका फन विथ मैग्नेट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जल्दी हम नए चैप्टर में मिलेंगे, ये 13 चैप्टर था, जल्दी हम लोग 12th चैप्टर में मिलेंगे जो कि आपका है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। मेरे चैनल को सब लोगों के साथ शेयर करिए मेरे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।